So welcome to my class, friends. So today we'll do exercise 5.1. In exercise 5.1 there are four questions. Okay, question number 1. In question number 1 again you have 5 parts. Okay, we'll do this also, ये भी करेंगे. Question number 2, here also we have 5 parts. We'll do this also. फिर है question number 3. Okay, and question number 4. So this is exercise 5.1, and there are two exercises actually in this chapter 5. Okay, Euclid's 2. So this one, actually we have done this one. Okay, this is chapter 5 actually, not 4. Okay, just, just don't get confused. This is chapter 5. Okay, class 9. So now see, introduction to English geometry, we have already done this video. You have not watched, please go back to the playlist and watch this video. Okay, तो इस चैप्टर में चैप्टर 5, okay, not 4, चैप्टर 5 में क्या है, दो एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, देन एक्सरसाइज 5.2 है. सो 5.2 में भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे. ठीक है, सो विल ट्राई टू फिनिश in 2 or 3 videos. Okay, so those who are new to my channel, please subscribe the channel and also share the videos if you like the videos. Okay guys, please support us so that we can bring more and more videos to you. Okay, we are trying to finish all the chapters of class 9 and 2. Okay, in the coming days we'll try to finish all this. Okay, so let's start exercise 5.1. Okay, so 5.1, which of the following statements are true and false. Okay, हमको true या false देखना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दिस. ओके, सो देयर आर 5 पार्ट्स, सो लेट्स टेक वन बाय वन. सो लेट्स टेक वन फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स? सेम, वो तो सेम ही है, ये लाइन तो कॉमन ही है सबके लिए. ठीक है, क्या क्वेश्चन एक्चुअली, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. क्या एक ही लाइन पास होता है सिंगल पॉइंट से? आई थिंक यू नो द आंसर. दिस आर वेरी सिंपल बेसिक मैथ्स, बट स्टिल we have to give reasons and all. Okay, we know that through a single point we can draw thousands of lines, infinite number of lines we can draw here, isn't it? See, if I have a single line, we can draw so many lines, so many lines, so many lines, so many lines, infinite number of lines we can draw. Okay, so this is false. Our answer will be false, because, so write the answer guys, this will be false. Why false? Because through a, because you can write your own answer also, because through a single point, through a single single point, we can draw infinite number of lines. See, this is a diagram, isn't it? So let's do question number 2. Very simple था ये one. Number 2 क्या है? There are infinite number, is just reverse the one. There are infinite number of lines which can pass through two distinct points. See क्या बोल रहे हैं guys? 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं. क्या इस 2 पॉइंट से बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकता है? नहीं, ये 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता है गाइस. दिस इज द लाइन, फिनिश, है ना, फिनिश, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता है, पी क्यू सपोज. सो राइट द आंसर फॉर दिस ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, because through two through two distinct, लिखना पड़ेगा ना, through two distinct points P and Q, huh? P and Q, we can draw a, we can draw only na, only one straight
line, that is PQ. ठीक है, let's do number 3 also. क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, पार्ट 3, ठीक है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। देखो अब, ए टर्मिनेटर लाइन कैन बी प्रोड्यूस, ए टर्मिनेटर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है सपोज ए बी, कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ, ऑब्वियसली ना, अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं यहाँ भी प्रोड्यूस कर पाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं ना। पोस्टुलेट में भी बोल रहा है ये ना, था ना पोस्टुलेट, ये अगर लास्ट वीडियोस अगर आप देखते हैं इंट्रोडक्शन टू, इसमें कहीं पोस्टुलेट भी होगा, ठीक है, पोस्टुलेट में भी बोलता है। See a terminator line, this one, this videos like this class already have taken, ठीक है, if you have not watched, go to the playlist and watch this video. So a terminator line can be produced indefinitely, ठीक है, indefinitely produce कर सकता है guys. So the answer will be, what will be the answer? Answer will be true, obviously, है ना, true, because postulate, see, you, let's give the postulate, because the Euclid's postulate 2, according to Euclid's, you can write this Euclid's postulate. Why we are using this postulate in exam? Because we are doing the same thing in this chapter only, okay, just like that, okay. Euclid's postulate 2 क्या बोलता है, according to Euclid's postulate number 2, a, this one, a terminated line can be, okay, you can write a terminated, comma you can put, a terminated line can be produced indefinitely. इसमें क्या प्रॉब्लम है, on both sides, on both sides, ठीक है गाइस। तो ये भी हो गया क्वेश्चन 3, पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1, तो जल्दी जल्दी कर दे गाइस, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, एकदम बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 पार्ट कर दे, पार्ट नंबर 4। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, ओके, एक सर्किल ले लेता है सबसे पहला, ये एक सपोज मेरा सर्किल है, और एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, और एक सर्किल ले लेते हैं इसी के ऊपर, है ना, दो सर्किल इक्वल दिखाना है ना हमको, तो ठीक है, इक्वल नहीं दिख रहा है, इसको फिर से करते हैं, प्रॉब्लम नहीं, एक सर्किल हो गया, एक ये ले लेते हैं दूर से, और एक सर्किल ले लेते हैं इसी का ऊपर, मतलब क्योंकि इक्वल दिखाना है ना हमको, तो वो इक्वल दिखाना है, ठीक है, दो सर्किल इक्वल हो गए, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, उसके बाद क्या होता है, देन द रेडियस इक्वल, ऑब्वियसली ना, अगर एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल है, ये सुपर इम्पोज बोलते हैं इसको, तो क्या होता है, ये सेंटर है ना, सेंटर भी कॉन्स्टेंट हो गया, दोनों सर्किल का सेंटर भी सेम ही है, ये बाउंड्री भी सेम ही है, दैट मीन्स व्हाट, रेडियस भी सेम ही होगा ना, सो रेडियस भी सेम ही होगा, दोनों सर्किल का रेडियस भी सेम ही होगा, ठीक है, सो यस, ये आंसर हो जाएगा ट्रू, लेट्स राइट ट्रू, कि बिकॉज क्या हो रहा है, सुपर इम्पोजिंग हो रहा है ना, सुपर इम्पोजिंग, एक एक सर्कल दूसरा उस सर्कल के ऊपर, द रीजियन ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल दूसरा सर्कल के ऊपर जब सुपर इम्पोज होता है, मतलब वो इनसाइड होता है, ऑन द अदर, ओके, क्या होता है, दियर सेंटर्स, इनका जो सेंटर्स रहता है, दियर सेंटर्स आ रहे, ठीक, आ रहे, दियर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज जो रहता है ना, ये बाउंड्री, ठीक है, चारों तरफ जो बाउंड्रीज कोइंसाइड हो जाता है, दस, तो जब कोइंसाइड होता है, ये जो सेंटर है और जो बाउंड्री है कोइंसाइड होता है, क्या होता है, दस देयर रेडियाई जो रहता है विल इक्वल, वेरी सिंपल, और कोइंसाइड, है ना, समझ में आना, बहुत सिंपल है गाइस। सो 5, नंबर 5 देखते हैं, इन फिगर ए बी माइनस पी क्यू, इफ ए बी इक्वल टू, है ना गाइस, ये माइनस नहीं इक्वल है,
ये इक्वल होगा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। मतलब ये और ये इक्वल है, उसके बाद फिर ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल, फिर ये वाला भी इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना ऑब्वियसली, है ना, ये और ये इक्वल, फिर ये और ये इक्वल। तो ऑब्वियसली क्या बात है, ये और ये इक्वल हो गया। समझ में आया ना, ये पॉसिबिलिटी भी था या फिर एक एग्जिम भी था, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्रू, सो दिस विल बी ट्रू, सो आंसर विल बी ट्रू। क्यों, इसलिए बिकॉज एग्जिम था ना, अकॉर्डिंग टू, दिख भी रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सियम था ना यूक्लिड्स का, यूक्लिड्स एक्सियम, ये नंबर 1 एक्सियम था। देखते हैं, सी बैग में जाते हैं तो कहाँ गया एक्सियम्स, सी दिस वन, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये और ये इक्वल हो गया, फिर ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल, फिर ये और ये इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्लिड्स एक्सियम 1, ठीक है, एक्सियम 1 बोल रहा था, क्या बोल रहा था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल, उसको जस्ट स्टेटमेंट जो था वो लिख दो, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, to the same thing are equal to one another, are equal to one another। समझ में गए, तो ये रहा क्वेश्चन 1 का 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 विल डू 2 ऑल्सो, 2 में भी 5 पार्ट है, ठीक है।